everyone, my name is Mehak Dhawan, owner of IELTS Domination and an IELTS trainer. Today, IELTS Domination is collaborating with Upgrad Abroad so that you have a brief guide that you can follow for your IELTS test. So now, today we're going to cover the normal basic vocabulary for your IELTS writing. So why I am using the word normal basic vocabulary? Because all these terms are basic but still very important. ये सारे वो words हैं, no matter आपका जो भी topic आएगा, ये words use होंगे ही होंगे, and today we're going to discuss that. In the previous video we discussed the detail format, कितनी categories होती है वो हमने सारी discuss करी थी. तो ये video आप तभी देखना अगर आपने पिछली video देखी है तो इससे ज़्यादा और अच्छा clear हो जाएगा. For now, let's see what the question is. The question says, some people believe television is good for children and others say it is bad. Discuss both views and give your opinion. Now see, हमने last video में discuss करा था that it is very important to structure the question. So over here we need to see that what's the demand of the question. Demand of the question is discuss both views and give your opinion. So first thing first, is the question asking for your opinion? आपने इसके both views बतानी है, मतलब दोनों sides बतानी है and give your opinion. Very straightforward. So yes, you have to write your opinion statement. Now the other question is that can you be on the partial side? ये मैंने last video में समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ that it is very important कि आप ये समझो कि partial is a part of your opinion. Partial होना भी एक opinion का part ही होता है. So if opinion is no, then partial it can be yes. And over here we can be on the partial side. Again यहाँ पे compulsion नहीं है. If you want you can be on the single side also, but यहाँ पे partial भी आप हो सकते हो. So that's why I written can. Now opinion yes, partial yes. अगर मैं structure की बात करूँ कि structure क्या रहेगा इसका, तो first you have to write the intro para, all right, then it will be BP1, BP2 and conclusion. Conclusion में opinion आएगा, yes आएगा. Again ये सब हमने डिटेल में डिस्कस करा था in the last video, so please make sure that you check out that. Now intro para में क्या क्या आएगा? पैराफ्रेजिंग, मतलब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे बट इन आवर ओन वर्ड्स यूजिंग गुड एडवांस एंड फॉर्मल सिनोनिम्स. वो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं हम वो अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर ओपिनियन स्टेटमेंट एंड देन द थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कैसे लिखनी होती है, कब लिखनी होती है, अगेन पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट आउट. नाउ लेट्स कम टू द वोकैबुलरी पोर्शन. सो नाउ द क्वेश्चन स्टेटमेंट, some people believe television is good for children and others say it is bad. अब हमें लिखनी है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग मतलब हमने इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है बट यूजिंग एडवांस एंड फॉर्मल वर्ड्स. मैं दोबारा ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगर आपकी वोकैबुलरी फॉर्मल नहीं होगी तो अगेन वो बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज राइटिंग टास्क 2 इज ऑन द फॉर्मल साइड. तो अगर कुछ भी आप इनफॉर्मल टोन या इनफॉर्मल वोकैबुलरी यूज करोगे तो वो अल्टीमेटली गलत हो जाएगा. नाउ ओवर हियर सम के लिए क्या क्या सिनोनिम्स यूज होते हैं. वी कैन यूज फ्यू, we can use certain, other than that we can use minority. ये 3 ब्रॉड सिनोनिम्स हैं जो हम सम के लिए यूज कर सकते हैं. सम एक ऐसा वर्ड है जो काफी क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा आपके, नो मैटर जोन सा भी टॉपिक आ जाए, नो मैटर जोन सी भी कैटेगरी आ जाए, सम वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं. तो मेक श्योर कि जो इसकी वोकैबुलरी है, जो इसके सिनोनिम्स हैं आपके पास फिंगर टिप्स पे हों. पीपल, वी कैन राइट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से क्या निकलेगा, पॉपुलेस. माइनॉरिटी ऑफ क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल्स. यू कैन ऑल्सो यूज men and women. मैं इसको भी हटा रही हूं. We can also use men and women. ये चीज नोटिस करना, ये सब कैटेगरीज के अंदर यूज नहीं होगा. क्वेश्चन की डिमांड अगर ऐसे जाएगी तो आप men and women यूज कर सकते हैं. Population, populace, individuals, men and women. You can also use citizens. You can also use society. Again, अगर आप 10 क्वेश्चन उठाओगे ना, 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर सम भी यूज होगा, जिसके अंदर पीपल भी यूज होगा. तो इस वजह से इनके सिनोनिम्स होना बहुत जरूरी है आपके पास, ताकि पेपर में आपका टाइम वेस्ट ना हो इन वर्ड्स को सोचने के लिए. एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम ऑन द बॉडी पैराग्राफ्स. नेक्स्ट वर्ड, बिलीव.
We can write have an opinion, opine, then think, say, feel, and the most controversial word, reckon. Now why I'm using the word controversial? Because reckon के लिए ना सबको लगता है कि हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. नहीं, reckon के साथ एक रूल होता है that we need to follow. reckon के साथ हम कभी I यूज नहीं करेंगे. It means I can say he reckon, she reckon, they reckon, it reckon. But what I cannot say, I reckon. reckon के साथ कभी भी first person नहीं यूज होता. तो अगर आप ये लिखते हो I reckon, it will be wrong. एग्जाम्पल में यू कैन यूज, बट अगेन आई के साथ यू कैन नॉट यूज द वर्ड रेकन. प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मेजर गलतियां होती हैं. अगेन एक और चीज बताती हूँ, जो ये बिलीव वर्ड है, जैसे पीपल है, यूजुअली पीपल एक ही बार यूज होगा, मतलब इसका जो सिनोनिम है, बट जो बिलीव वर्ड है, अगर क्वेश्चन में ओपिनियन पूछा जा रहा है तो दिस बिलीव वर्ड विल बी यूज मल्टीपल टाइम्स. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिलीव अगेन एंड अगेन, यू शुड यूज सिनोनिम्स लाइक ऑल दीज. ठीक है. नेक्स्ट, टेलीविजन. कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है ये, बिकॉज अगेन इट्स अ टॉपिक वर्ड. टॉपिक वर्ड मतलब जो हर टॉपिक के साथ डिफरेंट जाएगा. सो इट विल बी टेलीविजन. स्टिल बता रही हूं, इट कैन बी टेलीबॉक्स. ऑलराइट. अब यहाँ पे मोबाइल फोन हो सकता था तो उसका डिफरेंट जाता, यहाँ पे टेलीविजन था तो आपको मैंने बता दिया. बट अगेन कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बिकॉज एज आई सेड ये हर क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं होगा, बट स्टिल यू कैन कीप अ नोट ऑफ इट. इज गुड. गुड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या हम बेटर यूज कर सकते हैं? इज बेटर. इसको रिप्लेस करके देखो. सम पीपल बिलीव टेलीविजन इज बेटर फॉर चिल्ड्रन. मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा. सो गुड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बेनिफिशियल. अब रिप्लेस करके देखो. सम पीपल बिलीव टेलीविजन इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन. वी कैन रिप्लेस इट. इट इज मीनिंगफुल. सो इज गुड, बेनिफिशियल, advantageous, has or have advantages, then positives, then pluses, pros. What next? I guess we are good to go. Children के लिए what we can use for children? Okay, again मुझे एक बात बताओ, can we use juveniles over here? No, we can't. क्या juveniles children का पार्ट है या children होते हैं? Yes होते हैं, बट हम ये यूज नहीं कर सकते. हम क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज juvenile कब यूज होता है? ऐसे बच्चे जो क्रिमिनल्स होते हैं. तो क्या यहाँ पे हम क्रिमिनल्स की कुछ बात हो रही है? नहीं. सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो वोकैबुलरी आप यूज करो, इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक गिवन टू यू. ये नहीं होना चाहिए कि वो सिनोनिम तो है. क्या चिल्ड्रन और जुवेनाइल सिनोनिम नहीं है? क्या इनका मीनिंग सेम नहीं है? सेम है भी, नहीं भी है. जुवेनाइल चिल्ड्रन ही होते हैं, बट वो चिल्ड्रन जो क्रिमिनल्स होते हैं, यहाँ पे वो नहीं जाएगा. सो ओवर हियर यू कैन नॉट राइट द वर्ड जुवेनाइल. नाउ चिल्ड्रन के लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. आफ्टर दैट learners, scholars, teens. एक एडवाइस दूंगी, मेक श्योर कि आप इनको साथ साथ अपने नोटबुक में लिख रहे हो. जितना आप अपने नोट्स खुद बनाओगे उतना आपके लिए इजी होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने के लिए. सो मेक श्योर कि जैसे मैं इसको साथ साथ लिख रही हूँ, आप भी इनको साथ साथ लिखो अपनी नोट्स नोटबुक में. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लर्नर्स, स्कॉलर्स, teens. After that you can, if you want, you can even write young ones, youngsters. तो वो चल जाएगा, बट अगेन मेक श्योर कि वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. अदर्स के लिए अभी मैं छोड़ दूंगी. मैं क्यों छोड़ूंगी अभी मैं बताती हूँ. नाउ लेट्स मूव टू द अदर टर्म्स. ऑलराइट. नाउ
से। अब हमने भी करा था कि से और बिलीव के सिनोनिम्स आपस में सेम चलते हैं। बिलीव का भी से का सिनोनिम है और से भी बिलीव का सिनोनिम है। तो जितने भी हमने बिलीव के सिनोनिम्स लिखे थे दैट यू कैन copy and paste over here, like believe, think, feel, reckon, have an opinion, opine. मैं दोबारा नहीं लिख रही, you can copy and paste. Now coming to the bad, over here you can write negatives. जो positives के हमने लिखे थे उसका उल्टा. So negatives, limitations, drawbacks, minuses, disadvantages, cons. Again, a very quick tip. अगर टॉपिक आता है पॉजिटिव नेगेटिव का, जहां पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करने हैं, वहां पे ऑलमोस्ट ये सारी की सारी टर्म्स यूज होंगी। सो हमेशा ट्राई करा करो कि एक वोकैबुलरी या एक वर्ड अगर आपने यूज कर दिया है तो आप उसको दोबारा अपने एसे के अंदर यूज मत करो। ट्राई टू यूज मल्टीपल सिनोनिम्स, एंड वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास ये पहले से आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। बिकॉज पेपर में आपने आइडियाज भी सोचने हैं, आपने स्ट्रक्चर भी सोचना है। अगर ये वाली बेसिक वोकैबुलरी भी सोच लोगे तो इतना नहीं हो पाता गिवन टाइम के अंदर, बिकॉज 60 मिनट्स के अंदर 2 टास्क करने हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो, राइट। तो अगर ये बेसिक टर्म्स पता होंगी जो हर आंसर के अंदर यूज होंगी ही होंगी, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मैनेज योर टाइम, टू यूज फॉर्मल वोकैबुलरी, टू यूज एडवांस वोकैबुलरी, जिससे स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हमने डिस्कस करा था जितनी भी वोकैबुलरी आपको चाहिए, जो आप पैराफ्रेजिंग के अंदर यूज कर सकते हो, जो आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं वोकैबुलरी टर्म्स को यूज करेंगे पैराफ्रेजिंग करने के लिए, एंड वी विल ड्राफ्ट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ताकि आपको समझ आए कि ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करना है, थीसिस कैसे ड्राफ्ट करनी है, इंट्रो पैरा की लेंथ क्या होनी चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको मैं एक टिप भी बताऊंगी दैट यू कैन यूज इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। Minority of individuals. Now you can use minority of individuals or you can even use few individuals. Up to you. मतलब जो vocabulary हमने वहां पे यूज करी थी आप वो यूज कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी टॉपिक पे, that you can pick. So few individuals believe, are of the opinion that Telebox is good. So beneficial for children. So we can write for school going children. On the other hand, it's written and others say. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, full stop, on the other hand. If you want, you can even use whereas. Even that's fine. On the other hand, comma, there are some. अब सीखेंगे कि reckon कैसे यूज करना है। There are some who reckon with the fact. Reckon. There are some. थर्ड पर्सन जा रहा है तो हम reckon यूज कर सकते हैं। There are some who reckon with the fact that it has major drawbacks. Now we need to write opinion statement. Always remember that opinion statement starts with in my opinion, comma, it is advantageous. beneficial हम यूज कर चुके हैं तो अब हम advantageous या कोई और टर्म यूज करेंगे। it is advantageous for pupils or for learners
it is advantageous for pupils. If you want, you can just put a full stop here. You can wrap it over here. So in my opinion, comma, it is advantageous for pupils. Now, come to thesis statement. This essay will discuss my opinion in detail along with relevant examples and a logical conclusion. 3 statements and that will form your intro para. Paraphrasing, opinion and thesis. ओपिनियन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने का एक और तरीका सीखते हैं. ये मैंने करा जब आपका ओपिनियन स्टेटमेंट एडवांटेजियस की तरफ है, ठीक है. अब मैं बताती हूँ आप तब कैसे लिख सकते हैं अगर आपका ओपिनियन स्टेटमेंट पार्शियल की तरफ जाता है तो. बिकॉज एक साइड पे लिखना, जब सिंगल साइड पे लिखना हो, सो इट इज इजी कंपैरेटिवली, इट इज इजियर. नाउ लेट्स सी पार्शियल जैसे लिखते हैं उसमें कैसे जाएगा. स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे. इन माई ओपिनियन, कॉमा, इट इज एडवांटेजियस फॉर pupils to invest their time watching small screens स्मॉल स्क्रीन इसलिए क्योंकि पहले हमने टेलीबॉक्स यूज कर दिया था, कॉमा, बट एट द सेम टाइम इनफ अटेंशन must be devoted to academic subjects. Full stop. All right. हमने यहाँ पे लिख दिया academic subjects. If you want, you can even write overall health of the children or an adult or maybe not adult, children, child, pupil, आप वो भी लिख सकते थे. वो था करेक्ट. बट मेक श्योर अगर आप यहाँ पे ये लिख रहे हो ना तो आप बॉडी पैराग्राफ में चाहे 1 में चाहे 2 में कोई ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई रीजन जरूर डाल रहे हो इधर.